بشی ٹھیک ہے بالکل آرام سے رہیے پلیز یار شور مت کیجیے پلیز اکثر میں گزارش کروں پارک کے پریزیڈنٹ السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں اور حزب معمول جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور کافی ہمارے ساتھی تھے تو یہ مقصد سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے. جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے. اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے, میں سی ایل پی لیڈر تھی, اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے, ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے آج بھی ہے کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں, وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ, جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی, تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدے ہیں. سب سے پہلا بڑا مدعا ہے کہ پی ڈی پی ول فیسلیٹیٹ, یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں, جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں. اس کے بعد ریکنسیلیشن ود انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز, اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے انہی مدوں کے اوپر زور دیا. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. جموں میں شمشان گھاٹ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے, ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے, اور مسئلے جو کا تو ہے, بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے. اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے, پہلے تو تھی الیکشن میں, اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں. میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں, جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے, اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, تو یہ زندہ مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شہید ہے, مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تم ہے. اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے
उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसको उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं है, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है, उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे ख्याल में यहाँ से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैंप ड्यूटी, जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है, उसको हम डबल करेंगे। जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज है, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो। गुलमर्ग में क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी है। होटल की लीज खत्म करो, क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को। और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम
वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे, और मंडियां जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, 1 साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूट में उनकी भर्ती करेंगे और साफ शफाफ तरीके से। जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहबर तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 डेली वेजर जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था वो पेंडिंग है, उसको हम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लागू करेंगे। जो कुक्स होते हैं स्कूलों में जिनको 1,000 रुपए मिलता है उनको 2,500 करेंगे। होम गार्ड्स की हम ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे। डिस्टर्ब एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है। रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओ और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है। और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाते हैं उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की, सीआईसी ऑपरेटर्स को उनका तनख्वाह बढ़ाने की, रहबर खेल रेगुलराइजेशन की बात है। और उसके बाद पावर में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके पहले भी हमने रखा है इसको, ये हमारे एजेंडे में है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। अगर वो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हम ये कंपनसेट करें, हमें उसके बदले बिजली दें ताकि हम अपने लोगों को सहूलियत दे सकें। स्कीम्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज वो करना चाहते हैं हम, एक जम्मू में एक कश्मीर में। डिज्नी जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन जहां हालात ठीक हुए थे खाली करवाई थी, हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद टट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे। वहां हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स या उनकी बेचारों की अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूव को हम रिस्टोर करना चाहते हैं और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ से, उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑर्डिनरी टाइमिंग पे ले जाएंगे। और टेम्पल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हुकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है। और प्रेस क्लब जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उससे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए। और मुहर्रम के लिए एक डेडिकेटेड बजट हो और डिसेबिलिटी जो लोग हैं हमारे उनके लिए एक कमेटी, ताकि जो भी उनके जॉब्स खाली है सरकार में उनकी जल्द अज जल्द उनको पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स के अलावा हम स्कूटीज दे सके। मैंने देखा कि जब आप इनको स्कूटी देते हैं तो ये कितने मोबाइल बन जाते हैं, इनके कितने सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल सराय, मुगल रोड टनल और मुगल रोड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्राइबल ट्रेड ऑन पुंछ रावलाकोट रोड, वाटर टूरिज्म सर्किट, जेलियम बुलर मानसबल लेक,
dedicated corridor to enhance and promote religious tourism between Jammu and Katra. सनासर और मानसर लेक पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, चिनाब वैली में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डोगरा हेरिटेज सेंटर है जम्मू में, कश्मीर हेरिटेज सेंटर है कश्मीरी में, बनी बसोली टूरिज्म कॉरिडोर, लोरन गुलमर्ग टनल, बुदर शुपियन रोड और 2% रॉयल्टी फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अक्रॉस JNK, ताकि लोकल एरियाज के ऊपर वो खर्च किया जाए, और एनुअल पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ in government enterprises, departments, corporations across all regions of Jammu and Kashmir, और जो P और J के refugees का pending compensation है उसको दे, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए 1 बेडरूम के बजाय 2 बेडरूम, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है 5 मरला लैंड टू लैंडलेस, उसमें इनको प्रायोरिटी दी जाए, और भी जो उनको वापस बाइज्जत वापस लाने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। ट्राइबल्स के लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर लैंड ट्राइब्स, अनलॉफुल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए, और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना, इनके लिए स्कूल और हॉस्टल, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए हॉस्टल, ताकि जो ट्राइबल गर्ल्स है उनको चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, उनको आसानी हो जाए। और भी बहुत कुछ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एस्टैब्लिश मिनी सेक्रेटरीट सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। हम चाहते हैं कि एक एक मिनी सेक्रेटरीट हो। आप बोर हो रहे हैं, मैं समझती हूँ, मगर क्या करें, लोग सुनना चाहते हैं। फ्लाईओवर्स का हम बनाना चाहते हैं जहां जहां जरूरत हो, और डाउनटाउन एज लोकेलिटीज एज हेरिटेज एरियाज। आपको पता है कि अगर आप डाउनटाउन में जाएंगे तो इतना कुछ वहां पर है, वो जो पुराने मकाने, मुफ्ती साहब का भी ये आइडिया था, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उसको हेरिटेज सेंटर के तौर पे हम उसको डेवलप करें, और हैंडी क्राफ्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ है, जो उनके लोन्स हैं। मैं ज्यादा अपन को इतने सब कुछ पढ़ के बोर नहीं करना चाहती हूँ, और इशू बेस्ड फाइनेंशियल पैकेजेस हैं, ये तो बाकी आपको इसमें मिलेगा, मगर शुक्रिया करो से जल्दी से शुक्रिया नहीं। एम्प्लॉयमेंट में मैंने बोला ना कि जो भी जितनी भी कोई मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब वैकेंसीज है, उसको हम विद इन 1 ईयर उनको आइडेंटिफाई करके बहुत ही जल्दी उसको फास्ट ट्रैक पे उसकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके रिक्रूटमेंट की जिनकी वजह से रुकी है, हम उनको पूरी तरह से आउट कर देंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये इलेक्शन खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके, और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बहुत अच्छी बात है, पर हम उनको बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जदोजहद करेंगे। जी मैम यहाँ से चूँकि आपने 2 चीज़ों को बड़ी तरजीह दी है, एक ये कि आर्टिकल 370, 35 और स्टेट को कहा कि इससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल-अक़वामी स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना।
یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے، ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی، انہوں نے یاسین ملک سے بات کی، انہوں نے میروائی سے بات کی، انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی. تو آج انہیں لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے، وہ بھی تو پلیبیسائٹ بولتے ہیں. تو مسئلہ تو زندہ ہے اور ہم لوگ بھی زندہ ہے، اس لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو، جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں، جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجئے، بینکنگ فیسلٹی دے دیجئے، اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجئے ٹیکس لگا لگا کے. ایک ہی سوال پوچھنا. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا، میرے لیے یہ الیکشن جو ہے یا جو پولیٹیکل جو ہماری جماعت ہے، یہ الیکشن اسٹیٹ ہوڈ اور سیٹ شیئرنگ کے لیے نہیں بنی ہے. وی ہیو اے بگر گول ہمارا ہے، اور وہ گول ہے کہ جو جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے اس مصیبت میں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ باہر جائیں گے کوئی بھی وردی والا آپ کے کپڑے اتار کے آپ کی چیکنگ کر سکتا ہے. اس وقت آپ کی ڈگنیٹی کہاں رہی؟ ہم ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ریزولوشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے اس نے میرے بچے نے کہا کہ اتنا ہے، اسمبلی بالکل صحیح ہے. انہوں نے یہاں کے چیف منسٹر کو میونسپلٹی کا چیف منسٹر بنانے کی بھی عزت نہیں رکھی، ایک میونسپلٹی میں کنورٹ کیا سب سے بڑی پاورفل اسمبلی کو. مگر جو یہ ہمیں جگہ دیں گے ہم اسی میں لڑیں گے اور لڑ کے جیت کے دکھائیں گے ان سے. محبوبہ جی ایک سوال ہے. 5 اگست 2019 کے بعد آپ کی وائس یہ رہی کہ بی جے پی کی پوری طاقت آپ کی پارٹی میں توڑنے میں لگی. بالکل. اب وہی لیڈر واپس آ رہے ہیں. پیچھے بھی بی جے پی کے ہاتھ ہے. نہیں، ہمارے تو ہم تو سب کو نہیں لے رہے ہیں. وی آر بینگ ویری چوزی اباؤٹ دیٹ. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 40 لیڈر گئے تھے اور 40 کے 40 واپس آنا چاہتے ہیں، مگر وی آر بینگ ویری سلیکٹو. جنہوں نے پی ڈی پی کے ایجنڈے کے خلاف کبھی بات نہیں کی، اور جن کے ہمارے اپنے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں جو وہ ایگری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لیتے ہیں. باقی یہاں اوپن انٹری کسی کی نہیں ہے. کانگریس کے لیڈروں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ اعتراض نہیں ہے، لیکن نیشنل کانفرنس کو بالکل کھل کے اعتراض ہے. جیسے عمر عبداللہ نے کہا، کیا آپ کو کانگریس نے اپروچ کیا ہے؟ دیکھیے میں کہہ رہی ہوں، الائنس تو بہت دور کی بات ہے، سیٹ شیئرنگ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کانگریس نیشنل کانفرنس ہمارے ایجنڈے کو اپنانے کے لیے تیار ہے کہ ریزولوشن آف کشمیر ضروری ہے، ٹاپ پریارٹی ہے، راستے کھولنا، باقی ہم بولیں گے ان کو آپ کی ساری سیٹیں لڑو، ہم آپ کے پیچھے پھر چلیں گے. بیکاز میرے لیے ریزولوشن آف کشمیر پرابلم از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس جو اس وقت روندا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ سیٹ مجھے 4 دو آپ 3 دو، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کیونکہ نیشنل، دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں، جب ایک منٹ پلیز، جب ہم نے نیشنل کانگریس کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا. جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا، جس کے اوپر نے ایگری کیا. جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے، ان کے تو ایجنڈے پہ الائنس نہیں ہو رہا ہے، الائنس سیٹ شیئرنگ پہ ہو رہا ہے. تو ہم تو ایسی کسی الائنس کی تو بات کریں گے نہیں جس میں سیٹ شیئرنگ کی خالی بات ہو. الائنس ہمارا ہونا چاہیے ایجنڈے کے اوپر، اور ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان. بے شک اس ملک کے آئین کے اندر ہو، مگر سمادھان ہونا چاہیے. کیا پی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں الیکشن پروسیس کو بے معنی سمجھتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہر الیکشن ہمارے لیے ضروری، چاہے کارپوریشن کا ہو، پنچایت کا ہو، اسمبلی، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے. جموں کشمیر کی مشکلات، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ کی ہو، چاہے وہ ریزولوشن کی ہو، یہ ایک راستہ ہے. اس کو ہم
गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं। 2014 में पीडीपी ने अपना मंशूर जो है, मैं यहाँ से एजेंडा था सेल्फ रूल प्रीवियसली वी टॉक्ड अबाउट तो ये जो मैंने बातें की ये क्या है, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है, दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है? तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ। पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में वो क्या है? सब कुछ तो वही है। 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया। क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है? क्या हम पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं, और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा। आज चूंकि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अलायंस किस चीज को बचाने के लिए करेंगे? तब तो हमने बचाने के लिए करी थी, तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं आसिफ जी को ठीक है, डन।